Welcome to my YouTube channel. Myself Ravish Tiwari. I am going to describe an important topic of metabolic endocrinology, that is insulin hormone, a part of endocrine hormone. This hormone, as a word indicates, hormone is a chemical messenger secreted from endocrine gland directly into the bloodstream. An endocrine gland itself a type of ductless gland. This time I am going to describe that particular hormone on this whiteboard. As I have already explained on this board, that insulin, as word indicates, it is an amphibolic hormone, means ये एक ऐसा हार्मोन है जो दो रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है. एक एनाबॉलिज्म को भी ये प्रमोट कर सकता है, ये कैटाबॉलिज्म को भी प्रमोट कर सकता है. एनाबॉलिज्म को कहा जाता है फॉर्मेटिव प्रोसेस और कैटाबॉलिज्म को कहा जाता है ब्रेकडाउन प्रोसेस. ये दोनों प्रोसेस में बड़ी आसानी से भागीदार होता है इंसुलिन. इसलिए इस हार्मोन को बेसिकली एक लिस्ट में रखा गया है. इट इज अ टाइप ऑफ एम्फीबॉलिक हार्मोन. ये सिक्रीट होता है पैंक्रियाटिक बीटा सेल से. ये तब होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और ये कंडीशन कहलाता है हाइपरग्लाइसेमिया, ए वर्ड व्हिच इंडिकेट्स द एलिवेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन आवर बॉडी. When there is elevation of blood glucose, that glucose will stimulate beta cell of islets of Langerhans. बीटा सेल के पास ये ग्लूकोज जाता है और GLUT2 ट्रांसपोर्टर के माध्यम से बीटा सेल में प्रविष्ट होता है. और बीटा सेल को प्रविष्ट होने के बाद बीटा सेल में कुछ मॉलिक्यूलर चेंज होते हैं और फाइनली कैल्शियम का इन्फ्लक्स बीटा सेल में होता है और इंसुलिन बाहर निकल जाते हैं. There are multiple molecular mechanisms for secretion of insulin from beta cell to outside into the bloodstream. इंसुलिन जब निकल जाता है तो ये मैच्योर इंसुलिन के फॉर्म में होता है. इस इंसुलिन में दो चेन होते हैं, ए चेन और बी चेन. जैसा कि यहाँ सामने एक्सप्लेन हमने किया है, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ ए एंड बी चेन. ए चेन और बी चेन के बीच में दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है. इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कहा जाता है. इट इज 2 in number, while A chain contains single disulfide bond, that is known as single intrachain disulfide bond. And what are the position of these disulfide bond? I have explained in second diagram associated with the insulin molecule. This one is the A chain which contains 21 amino acid. This 21 amino acid, while B chain contains 30 amino acid. In A chain and B chain, these amino acids are interlinked by some bonds that is known as disulfide bond, and the position is 7 and 7 between A and B chain and 20 and 19 between A and B chain. This important disulfide bond maintains the structure of or primary structure of the insulin molecule, while A chain contains disulfide bond between 6th amino acid and 11th amino acid. Here 7, 19 and 20 indicates position of amino acid. These, after interaction of these disulfide bonds, finally mature insulin will be formed, and the place of maturation is an important organelle, and that organelle is known as Golgi body. Already I have explained that organ, that is organelle. The name of that organelle is Golgi body. The bioactivity of insulin entirely controlled by the two important ions, zinc and chromium ion, that will control the bioactivity of the insulin. Without these important ions, insulin will not perform their own task on target cell. Each and every hormone has particular cell of action, and after interacting with that cell, that hormone will induce physiological process inside the target cell. Just
after describing all these things. Now the next point is, initially insulin is immature. That means it contains additional peptide, that is C-peptide, that has to be removed by carboxypeptidase and trypsin enzyme. After removal of this, in the diagram, as I have shown on this board, insulin is formed by a specific chromosome expression. That chromosome is known as 11. This chromosome 11 is responsible for insulin production. With the help of biotechnology, chromosome 11 is very important, and the insulin can be obtained from this chromosome expression, and finally with the help of expression vector, insulin can be amplified or it can be synthesized on mass level. इंसुलिन का मोड ऑफ एक्शन की जब हम लोग बात करते हैं, इंसुलिन निकल गया, इंसुलिन के अपने काम करने के ढंग होते हैं। क्या कोई हार्मोन का एक अपना रिसेप्टर होता है, और वो रिसेप्टर से जब हार्मोन इंटरैक्ट करता है तो इंटरैक्ट करने के बाद वो पहले इंट्रासेल्युलर कंपोनेंट को स्टिमुलेट करता है टू परफॉर्म इट्स टास्क ऑन द टारगेट सेल। जब इंसुलिन सेल मेम्ब्रेन पर, टारगेट सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करता है तो उस मेम्ब्रेन पर हेटेरोडाइमेरिक रिसेप्टर होते हैं, एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ अल्फा 2 एंड बीटा 2। हियर अल्फा 2 जो यहां मेंशन किया गया है, ये रेड लाइन में अल्फा 2 जो मेंशन किया गया है, ये अल्फा 2 इंसुलिन बाइंडिंग साइट कंटेन करता है। जैसे इंसुलिन अल्फा 2 से बाइंड करता है, इसके बीटा 2 का जो कंपोनेंट है वो एक्टिव हो जाता है, इसके अंदर के एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं, और उस एंजाइम का नेचर टायरोसिन काइनेज की तरह का होता है, और ये काइनेज एंजाइम पूरे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ इंसुलिन को एक सेल के अंदर पैदा कर देता है। जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर concept of insulin action on another diagram. Now, Now I am going to explain about the mode of action of insulin. I have discussed about the heterodimeric receptor for insulin action. As I know, alpha subunit जो आपके सामने दिया हुआ है biological membrane पर, this is plasma membrane of target cell जिस पर इंसुलिन एक्ट करता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर जब इंसुलिन एक्ट करता है तो ये अल्फा सब यूनिट से इंटरैक्ट करता है, जो रिसेप्टर का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है, यानी सेल के बाहर वो हिस्सा प्रेजेंट होता है। When insulin will interact that particular alpha subunit, finally enzymatic activity of the beta subunit will be stimulated. उस एंजाइम का नाम है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। जैसे ही एंजाइम एक्टिव होता है, ये एंजाइम अपने सबस्ट्रेट IRS1 को फॉस्फोरिलेट करके एक्टिव कर देता है। जैसे IRS1 इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट एक्टिव होता है, ये फाइनली स्टिमुलेट करता है काइनेज एंजाइम को, ग्लाइकोजन सिंथेज नाम के एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, ग्लूट ट्रांसपोर्टर का एक्सप्रेशन सेल मेम्ब्रेन पर बढ़ा देता है और सेल डिवीजन को एक्सेलरेट कर सकता है। काइनेज एंजाइम ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है। ग्लूट के एक्सप्रेशन के बढ़ने की वजह से ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन उस सेल में बढ़ जाता है जिस सेल पर इंसुलिन एक्ट कर रहा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंसुलिन के एक्शन का, और साथ ही साथ इंसुलिन जिस सेल पर एक्ट करता है उस सेल में डिवीजन के पोटेंशियल को, यानी माइटोटिक एक्टिविटी सेल में बढ़ा देता है ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर MPF. This is the very important protein inside the cell which actually accelerates the division of the cell when insulin will interact that particular function. ये जो इंसुलिन का ये खास फंक्शन है, ये कल्चर मीडिया में देखने को खास मिलता है कि जब इंसुलिन को कल्चर मीडिया में मिलाया जाए, खास करके उसमें सेल को रखा जाए, तो इंसुलिन के एक्शन से वो सेल आसानी से डिवाइड करता है, उसमें ग्लूकोज का इनकॉर्पोरेशन बढ़ जाता है, उसमें अमीनो एसिड्स इनकॉर्पोरेट होते हैं और सेल की वाइबिलिटी, होमियोस्टैसिस अल्टीमेटली मेंटेन हो जाती है। अब जब हम लोग बात करेंगे इंसुलिन के एक्शन के बारे में, तब हम लोग बात करें कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन।
इंसुलिन क्या करता है हमारे बॉडी में? अगर देखा जाए, इंसुलिन ग्लाइकोजन के सिंथेसिस को करता है, लिपिड के सिंथेसिस को प्रमोट करता है, जिसको हम लोग लाइपोजेनेसिस कहते हैं। ये सेलुलर रेस्पिरेशन को एक्सेलरेट करता है। ये प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया का रास्ता को साफ करता है। प्रोटीन एनाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन इज ऑफ ग्रेट रोल ऑफ इंसुलिन। ये ओवरऑल फंक्शन इंसुलिन का होता है। ये क्या परफॉर्म नहीं कर सकता है? तो इंसुलिन ग्लाइकोजेनोलाइसिस नहीं करता है, और इसमें लिपिड का जो टूटने की प्रक्रिया होती है वो इंसुलिन के एक्शन से नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन लिपिड बनाने का काम करता है, लिपिड तोड़ने का काम इंसुलिन का नहीं है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड यहाँ होना चाहिए। ये ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड को नहीं कर सकता है। ये हार्मोन ग्लूकागोन हार्मोन के विपरीत के तरीके से अपोजिट एंटागोनिस्टिकली एक्ट करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एंटागोनिस्टिक टू ग्लूकागोन। अगर इंसुलिन, व्हेन देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन बिकॉज ऑफ लेस प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ये कहलाता है, इससे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस a type of condition when there is deficiency of insulin। ये डायबिटीज मेलिटस के 3 कैरेक्टर्स हैं। इसमें प्यास बहुत लगती है, खाने को बहुत मन करता है, और इसमें यूरिनेशन जरूरत से ज्यादा होता है। तो पॉलीडिप्सिया प्यास लगने को कहा जाता है, अधिक प्यास लगने को पॉलीफेजिया अधिक खाने की प्रक्रिया को कहा जाता है, और पॉलीयूरिया अत्यधिक यूरिन आउटपुट को कहा जाता है। तो ये जो है डायबिटीज मेलिटस के फीचर हैं। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज 2 तरह के होते हैं, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। टाइप 1 को कहा जाता है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। इसमें ये लेस देन 20 इयर्स में होता है, 20 इयर्स के कम में होता है। इसमें कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाता है, और कीटोन बॉडी जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर इनका एक्युमुलेशन बढ़ने लगे तो ये बॉडी के लिए, शरीर के लिए फैटल हो जाता है, और इसमें बीटा सेल का डिप्लीशन हो जाता है टाइप 1 डायबिटीज में। एसिडिक बॉडीज जो है आपका कीटो एसिडोसिस, उसमें एसीटोन, एसिटोएसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट मॉलिक्यूल्स चले आते हैं। डायबिटीज मेलिटस, it is non-insulin dependent। In such type of diabetes, this type of diabetes, beta cell produces insulin but has less capacity to secrete insulin. In that situation, drug can be introduced or drug can be required for acceleration of insulin secretion, and that drug belongs to tolbutamide or sulfonylurea. When these drugs will act on the beta cell target receptor, finally depolarization results and insulin secretion will start, and the phenomena is known as immunocytosis of insulin। इंसुलिन का बाहर निकलना इम्यूनोसाइटोसिस कहलाता है, और ये इंसुलिन का निकलना ये प्रोमोटेड होता है ड्रग के इंडक्शन से, क्योंकि सेल की कैपेसिटी है बनाने की, लेकिन निकलने की कैपेसिटी इस पे कम है, और ड्रग डाल करके ड्रग के एक्शन से हम डिपोलराइज करते हैं, कैल्शियम को इंट्रोड्यूस करने के बाद इसके सिक्रेशन को प्रमोट कराते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर द टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग डिपेंडेंट होता है, वो ड्रग है सल्फोनाइलयूरिया ड्रग, और ये होता है, इसमें कीटोएसिडोसिस नहीं होते हैं, और ये ओबेसिटी में, खास करके ये ओबेसिटी में देखने को मिलता है। ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस का केस हुआ। अब नाउ आई एम गोइंग टू द हाइपोग्लाइसेमिया। एक ऐसा कंडीशन व्हेन देयर इज लोअरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन में या फिर कोई डिजीज कंडीशन में, या फिर जरूरत से ज्यादा अगर इंसुलिन का सिक्रेशन आपके बॉडी में बढ़ रहा है, तो वो कंडीशन कहलाता है हाइपर इंसुलिनेमिया, एंड इट गोज टू इंसुलिनोमा, अ टाइप ऑफ बेनाइन ट्यूमर ऑफ बीटा सेल। शुरू
इंसुलिनोमा, a type of benign tumor of the beta cell, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स बीटा सेल के बढ़ जाते हैं, इसके वजह से इंसुलिन का प्रोडक्शन ब्लड में बढ़ जाता है। इससे सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया, इरिटेबिलिटी, विजन प्रॉब्लम, पल्स रेट फास्ट हो जाता है, नर्वसनेस होते हैं। ये सारे फीचर जो होते हैं सडनली ग्लूकोज की कमी होने की वजह से होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए जितने भी क्लिनिशियंस हैं और जितने भी डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, इंसुलिन के सिक्रेशन को कम हो इसके लिए बीटा सेल का डिस्ट्रॉय करने वाले ड्रग्स को वो इंट्रोड्यूस करते हैं। उस ड्रग का नाम है एलॉक्सेन, स्ट्रेप्टोजॉटिसिन। एलॉक्सेन ये ड्रग है जो बीटा सेल पर एक्ट करता है, बीटा सेल के संख्या को डिस्ट्रॉय करता है और कहिए कि बीटा सेल के को फंक्शनलेस कर देता है। इससे इंसुलिन का कंसंट्रेशन ग्रेजुअली ब्लड में जो है कम होने लगता है और हाइपोग्लाइसेमिया का जो एडवर्स सिचुएशन आ रहा था वो ग्रेजुअली कंट्रोलिंग सिचुएशन पे चला जाता है और इस तरीके से आप एक क्यूरेबल स्टेट में चले आते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. This is, and thank you for watching my important video lecture related to the topic, a specific important metabolic hormone, that is insulin, which is essential for our body part. Thank you very much. Please like and subscribe this video for future considerations or for future questions. You will have to ask, you will have to consult, as my phone number will be given to that video.